Welcome to students. This lecture is based on extraordinary particle of the cell called ribosome. Ribosomes are also called as protein factories as they are participating in the super process of almost all the cells, that is protein synthesis. Cell cannot survive without protein, and similarly it also need ribosomes. So what are ribosomes? These are proteins and rRNA particles. Indirectly we can say these are ribonucleoproteins. Okay, chemically they are ribonucleoproteins, and these are very small particles. These are ribonucleoproteins, and they are particle actually because they are not bounded by unit membrane like other cell organelles we discussed earlier. Okay, so they are not bounded by any membrane. They are simply particles of the cell and found in all the cells: prokaryotic cell like bacterial cell, eukaryotic cell like plant cell, animal cell. They are integral part of each and every cell. Okay, first ever we can say microscopic study was carried out by George Pallet in 1955. Okay, in 1955, electron microscopic, we can say electromicrograph of these special particles was completely illustrated by scientist Pallet. So these are particles made up of RNA and protein. It consists of rRNA and protein called ribosomal proteins. So their share is also very important. rRNA constitute about 65% part. On the other hand, 35% share is of protein called ribosomal protein. तो ये जो आरएनए होते हैं, rRNA, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस में, और उसी तरह ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स तो साइटोप्लाज्म में बनाए जाते हैं ऑफ कोर्स, बट दिस प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अगेन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस. तो ये rRNA और ये प्रोटीन्स, ये दोनों असेंबल्ड होते हैं इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस. दैट इज द सिंथेसिस साइट फॉर राइबोसोम्स. ओके, तो राइबोसोम क्या होते हैं? Ribosomes are small ribonucleoparticles. Okay, they are ribonucleoproteins, we can say in the words, or simply they are the particles found in all possible types of cells. चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, ये हमें हर जगह मिलते हैं. ऐसे कॉमन तरह के सेल ऑर्गेनेल्स भी आप कह सकते हो वैसे, बट इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है. ओके, दे डू नॉट शो एनी टिपिकल मेम्ब्रेन, सो दे आर membraneless particles. They are membraneless particles. Okay, very important, you should know. They are very small as well, 150 angstrom to 250 angstrom. Their dimension is very small. Okay, so they are sometimes considered as the smallest particle or smallest cell structures found in any typical cell. ठीक है, तो हम समझते हैं पहले कि ये स्ट्रक्चर्स हमें सेल में कहाँ मिलेंगे. ओके, व्हाट इज देयर एग्जैक्ट एड्रेस इनसाइड द सेल. So these particles, of course, are cytoplasmic bodies. So their occurrence, where do they occur? So in almost all the cells, they are found in all the cells in cytoplasm. So they are found in cytoplasm. In almost all the cells, they are found in cytoplasm. So let's think one by one. These are found free, scattered in cytoplasm. Freely scattered in cytoplasm. Okay, another possibility is found attached. They may found attached to endoplasmic reticulum called rough endoplasmic reticulum. तर बघा, हे आपल्याला कुठे पाहायला मिळत आहे? फ्री इन सायटोप्लाझम. सिमिलरली ते आपल्याला पाहायला मिळतात रफ एंडोप्लाझमिक रेडिक्युलमच्या सरफेसवर, त्यामुळेच त्यांचं नाव रफ आपण ठेवलेलं आहे. Otherwise, some endoplasmic reticulum are there in plant cell, or we can say animal cell, without bounded or coded by ribosomes, and they are called smooth endoplasmic reticulum. ठीक है ना? So endoplasmic reticulum च्या सरफेसला ते अटॅच आहे, ज्याला आपण म्हणायचं आहे रफ endoplasmic reticulum, but they may also found attached to nuclear membrane as well. Okay, तो आपने देखा
ये इंडोप्लाज्म रेडिकुलम के सरफेस को भी अटैच होता है, ठीक है। उसी तरह ये न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर सरफेस, उसको भी अटैच होते हैं, राइट। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सम सेल ऑर्गेनेल्स, ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी हमें मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस वी कैन से mitochondria as well as chloroplast, they are found within these special cell organelles, mitochondria and chloroplast, okay। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसको हमने कहा है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बिकॉज दे डू possess their own DNA as well as राइबोसोम्स, ओके। तो उनके जो खास तरह के प्रोटीन्स है, जो एंजाइम्स होते हैं ऑफ कोर्स, जो हमें चाहिए फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन पर्पस, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी प्रोटीन एंजाइम्स चाहिए वो बना सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर राइबोसोम्स। So ribosomes are found in cytoplasm, also attached to endoplasmic reticulum. Okay. Similarly, they are also found in some cell organelles like mitochondria and chloroplast. So that is their positional concept. Okay. Then ribosomes are chemically consist of, already we explain about those things, that is rRNA and proteins. rRNA and ribosomal proteins. rRNA are synthesized in nucleus and they are now in nucleolus, ठीक है। nucleolus इसका synthesis site होता है। ribosomes are produced where in the cell? ribosomes are produced inside the nucleolus of nucleus, and there they need rRNA and they need ribosomal proteins as well, ठीक है। तो ये ribosomal proteins तो साइटोप्लाज्म में बनते हैं, बट साइटोप्लाज्म से वो माइग्रेट होते हैं टू न्यूक्लियोलस where they bond together to form such ribosomes which are assembled into different subunits, okay। तो उनके सबयूनिट्स भी हम अभी स्टडी करेंगे just right here, बट पहले आपको ये समझ लेना है कि इसमें about 65% राइबोसोमल आरएनए है, ओके, और रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स इसमें होता है, बाकी चीज़ें निग्लिजिबल होती हैं, बट ये दो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी भी राइबोसोम में रहते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट हैव अ लुक एट दी इट्स वी कैन से सब यूनिट्स। स्ट्रक्चरल असेंबली जो होती है, वैसे तो बहुत सारे इसके मॉडल्स दिए गए हैं डिमॉन्स्ट्रेशन में, बट जो एक चेयर मॉडल होता है, राइट, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन करता है इसके स्ट्रक्चर को, चाहे वो स्मॉलर सब यूनिट हो या फिर वो लार्जर सब यूनिट हो, और उनका असेंबली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस, ओके। These two subunits may bond together to form complete ribosome and they are going to play tremendous role in protein synthesis. तो इसका सबसे important काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। हर तरह का प्रोटीन ये अगर फॉर्म होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोमल सबयूनिट्स में होगा, आई मीन राइबोसोम में होगा, ठीक है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ये पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होंगे, जोड़े जाएंगे, और ये अमाइनो एसिड्स को जोड़कर आपको मिलेगा एक पॉलीपेप्टाइड, and that is what protein is, okay। so with the help of messenger RNA, जिस पे एक खास तरह का मैसेज है, वो कौन है? मैसेंजर RNA। उस पे एक इनक्रिप्टेड मैसेज है, ठीक है, उसके पास जेनेटिक कोड है, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स जो यहाँ पे रहते हैं वो है ट्रांसफर RNA। सो वी नीड मैसेंजर RNA, वी नीड ट्रांसफर RNA एंड ऑफ कोर्स राइबोसोमल RNA विच आर राइट देयर इन राइबोसोम। तो तीन तरह के RNA हमें चाहिए, मैसेंजर, देन ट्रांसफर एंड राइबोसोमल। और सबसे ज़्यादा सेल में कौन सा RNA होता है? राइबोसोमल RNA इज द मोस्ट एबंडेंट RNA वी हैव, ठीक है, सबसे ज़्यादा राइबोसोमल RNA होता है, और इनकी हेल्प से बनता है प्रोटीन। तो एक स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, दैट विल रिप्रेजेंट द राइबोसोम। इस तरह का यहाँ पे हम एक लार्जर सबयूनिट कंसिडर कर सकते हैं, लार्जर सबयूनिट, ओके। सो दिस डायग्राम इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल राइबोसोम। So I have drawn here the larger subunit, okay, so this one is larger subunit, and this larger subunit should attach to smaller subunit for its activity. So let me draw here another one, that is the smaller subunit which is bound attached to it, so that become the chair model, okay। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ब्लू कलर में दिखा दिया है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, ओके, और ये है लार्जर सब यूनिट, इसको आप कह सकते हो लार्जर सब यूनिट, राइट। तो ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ये अलग अलग कैटेगरीज में मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये आप प्रोकैरियोटिक सेल में स्टडी करते हो तो यहाँ पे ये होगा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, वेयर S स्टैंड्स फॉर व्हाट। यहाँ पे इस S का मीनिंग भी समझ लेना काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो हियर दिस पर्टिकुलर S रिप्रेजेंट
स्वेटबर्ग यूनिट, इसको आप कह सकते हो स्वेटबर्ग यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट. स्वेटबर्ग यूनिट ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसको कहा जाता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, राइट, that S represent sedimentation value of that particular ribosome in ultracentrifuge. तो अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज एक तरह का मशीनरी है जिसमें हम ये सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस करते हैं. मीन्स वी हैव टू रोटेट एट पर्टिकुलर स्पीड, ठीक है ना, एक खास आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, इस तरह का आपको रोटेशन करना होता है. और जब उसका सेडिमेंटेशन होगा वो रेट पता करना होता है. सो दैट रिप्रेजेंट एक्चुअली इट्स सेडिमेंटेशन रेट. ओके, तो इसको आप याद रख सकते हो इस तरह. फॉर एग्जाम्पल 1s रिप्रेजेंट एक्चुअली 10⁻⁻13 सेकेंड्स, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. और ये स्वेटबर्ग यूनिट है, राइट, स्वेटबर्ग यूनिट. सो हियर 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड वेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है. इन प्रोकैरियोटिक सेल we get 70 types of ribosomes. Similarly in mitochondria, right, in mitochondria, similarly in chloroplast, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, और प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में 70 टाइप का राइबोसोम मिलेगा, राइट. और ये 70 टाइप के राइबोसोम्स में हमें दो सब यूनिट्स दिखाई देंगे, स्मॉलर और एक लार्जर. स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पे होता है 30s और लार्जर सब यूनिट यहाँ पे होता है 50s, ठीक है. डोंट ऐड देम मैन्युअली. अगर आपने ये 30-50 एक कर दिया तो 80s टाइप ऑफ राइबोसोम कहलाना चाहिए, ठीक है. बट इसका एडिशन नहीं करना है, ये हमें सेडिमेंटेशन से वैल्यूज यहाँ पे कन्फिगर करने हैं. ओके, सेडिमेंटेशन, इफ वी सेडिमेंट दिस सेपरेटली, इसका जो स्वेटबर्ग यूनिट हमें मिलता है वो है 30, इसलिए इसको ऐसे नाम दिया है. और ये 50 में मिलता है, राइट. सो 30 and 50, these are two subunits of 70s ribosome, not 80s ribosome. 80s ribosome अगर आप पढ़ोगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यूकैरियोटिक सेल में समझना है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मतलब मॉडर्न सेल जो होता है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको लार्जर सबयूनिट जो मिलेगा, ठीक है, वो रहता है 60s टाइप. और स्मॉलर सबयूनिट जो रहता है, स्मॉलर, वो रहता है 40s. तो इसमें स्मॉलर है 40, लार्जर है 60. इफ वी ऐड देम इट बिकम अ सेंचुरी, ठीक है ना. वो तो 100 हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, उसको ऐड नहीं करना है, वो उसका सेडिमेंटेशन वैल्यू होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. ओके, आल्सो कॉल्ड स्वेटबर्ग यूनिट. तो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट है 60, ये स्मॉलर सब यूनिट है. सो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन whenever goes on increasing, magnesium and calcium, then these two subunits bound together to form a single ribosome. तो हमें ऐसे सिंगल राइबोसोम मिल जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आपने देखा कि राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, ये उसका लार्जर सब यूनिट है. अगर ये 70s है तो इस तरह, अगर ये 80s है, 80s, ठीक है, तो 80s ये ऐसे होगा, स्मॉलर 40, लार्जर 60, नॉट 100, आई रिपीट. तो यहाँ पे आपने देखा इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, ये क्लेफ्ट होता है बीच में, जहाँ पे एक खास तरह का आरएनए असेंबल्ड होगा, ठीक है. जैसे कि आपको बता दूं कि इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना. प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं ये सारे राइबोसोम, और कभी कभी ये राइबोसोम्स बहुत सारे बाइंड हो जाते हैं एक साथ एक ही मैसेंजर आरएनए पे, और वो कहलाता है पॉलीराइबोसोम, ठीक है. व्हेन मेनी राइबोसोम्स बाउंड ऑन अ सिंगल मैसेंजर आरएनए जस्ट लाइक दिस, ये देखिए आप, ये लार्जर, ये स्मॉलर, ये लार्जर, ये स्मॉलर, ये लार्जर, ये स्मॉलर. अगर ऐसे बहुत सारे राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए पे बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको आपने कहना चाहिए पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स, ठीक है, या फिर इसको क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम्स, लाइक दिस. To increase the efficiency of protein synthesis, sometime that may happen. Many ribosomes can bound on same messenger RNA. तो यहाँ पे आप ऐसे मैसेंजर आरएनए दिखा सकते हो. देखिए मैसेंजर आरएनए यहाँ पे ऐसे सिंबल होगा. मैसेंजर आरएनए पे होते हैं खास टाइप के सीक्वेंसेस जिसको आप कहते हो कोडॉन, ठीक है ना. सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इस पे रहता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसको कोडॉन कहा जाता है, ठीक है. सपोज हियर इज, आपको एक ले सकते हो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लेते हैं CCC. एक खास तरह का एक कोडॉन है ऑन मैसेंजर आरएनए. तो यहाँ पे आना चाहिए अब ट्रांसफर आरएनए, ठीक है. इन राइबोसोम जब ये दो सब यूनिट बाइंड हो जाते हैं इन साइटोप्लाज्म, ओके, तो अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है ट्रांसफर आरएनए की. यहाँ पे एक ट्रांसफर आरएनए आपको दिखा देते हैं,
so that you can get idea about protein synthesis. ठीक है, देखिए इस तरह यहाँ पे आप ले लोगे ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए पे क्या होते हैं एंटीकोडॉन्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन्स। तो जो कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री है एंटीकोडॉन वो आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे होना चाहिए जी, जी और जी। ठीक है, इस तरह वो कोडॉन एंटीकोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होना चाहिए सो दैट दे बाइंड टुगेदर। एंड हियर देख सकते हो आप यहाँ पे खास तरह का क्या होगा एट 3 प्राइम एंड यहाँ पे होगा अमीनो एसिड। ठीक है ना, एक खास अमीनो एसिड यहाँ पे होगा से ग्लाइसिन। तो यहाँ पे अमीनो एसिड पहला आता है, फिर यहाँ पे पेयरिंग होने के बाद ये अमीनो एसिड ये फिक्स हो जाएगा स्पेसिफाई। यहाँ पे ए साइड होता है, यहाँ पे पी साइड होता है, यहाँ पे ई साइट होता है, ये अमीनो एसिड साइट है। यहाँ से आप कह सकते हो एंट्री मिलता है किसी भी ट्रांसफर आरएनए को, ये है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए यहाँ से आता है, यहाँ पे उसका पी साइट पेप्टिडिल साइट होता है जहाँ पे उसका बाइंडिंग होता है। ठीक है, और ये ई साइड होता है एग्जिट, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है आफ्टर पेयरिंग सक्सेसफुली। यहाँ से एंट्री होगा, यहाँ पे पेयरिंग यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस तरह एक पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जब बाइंड हो जाते हैं ओके बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना वो सिर्फ इसके अंदर हो सकता है इन राइबोसोम। सो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा और आपको मिल जाएगा एक पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन यही तो इसका अल्टीमेट फंक्शन है। ओके, सो राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। अल्टीमेट फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाते हैं। दैट्स हाउ दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, ribosome going to synthesize protein in each and every cell, whether it is bacteria or it is plant or animal cell, and also in chloroplast and mitochondria। सब में ये करता है similar function protein synthesis और इसीलिए कहलाता है protein factories। Similarly आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ खास तरह के जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डिग्रेडिंग एंजाइम्स, उससे ये प्रोटेक्शन भी करता है। डिग्रेडिंग एंजाइम्स से ये करता है प्रोटेक्शन। So it protect the cell against degrading enzymes। जो बहुत सारे degrading enzymes होते हैं ना, ठीक है, उससे ये सेल को बचाता है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को भी। So that's great function of ribosome। But ultimate function जो है राइबोसोम का वो है प्रोटीन सिंथेसिस, वही आपने याद भी रखना है। So about structure, you should know important names of scientists like Venkatraman, Ramakrishnan, okay, Venkatraman Ramakrishnan, very important name, Venkatraman Ramakrishnan, awarded Nobel Prize and shared of course in 2009 with Yonath of Israel and similarly Thomas States from United States of America, right, USA, Israel। So Venkatraman Ramakrishnan from, देख आप सब देख सकते हो ये जो शेयरिंग किया गया ना, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, यूनाथ फ्रॉम इजराइल एंड थॉमस स्टेट्स फ्रॉम अमेरिका। ओके, तो ये थॉमस स्टेट्स, यूनाथ एंड Venkatraman Ramakrishnan, they awarded Nobel Prize for the discovery for detailed structure। okay, उन्होंने बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर जो इसका ये रिवील कर लिया कम्प्लीटली और इसलिए इन्हें दिया गया, इनको ऑनर किया गया बाय गिविंग नोबेल प्राइज ऑफ कोर्स। तो आप देख सकते हो राइबोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया हर जगह दिखाई देंगे और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखाई देंगे। ठीक है, they are found in endoplasmic reticulum, they are found in nuclear membrane, they are also found in free scattered in cytoplasm। और ये बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियोलस विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, और बाद में ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं सेपरेटली। इसके दो सब यूनिट सेपरेट होते हैं। 70S आपको राइबोसोम में, ये जो राइबोसोम है आपको बैक्टीरिया में मिलता है प्रोकैरियोटिक, और साथ में आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम ये यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। जो 70S है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक 30S स्मॉलर, लार्जर 50S। उसी तरह जो 80S राइबोसोम है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर 40S और लार्जर 60S। S स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग यूनिट, दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज। ओके,
और राइबोसोम के जो काम है, दो मेजर काम आपको बताए गए हैं। एक तो प्रोटीन सिंथेसिस अल्टीमेट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड ऑफ कोर्स राइबोसोम्स। तो इसके मदद से बनेगा हमारा प्रोटीन। बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो इसी से बनाए जाते हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, और कोई बायोकेमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस in our cell, then of course it is with the help of protein or enzymes and that is produced by ribosomes. तो राइबोसोम ये प्रोटीन डिग्रेडिंग कुछ अदर एंजाइम्स रहते हैं उससे भी बचाता है हमारे सेल को, तो ये भी इसका एक अल्टीमेट फंक्शन आप कह सकते हो। बट प्रोटीन सिंथेसिस इज द सुपर वन, दैट्स हाउ दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल, ठीक है ना। वैसे इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये आपने याद रखना है कि इसको एक टिपिकल सेल ऑर्गेनेल हम नहीं समझते हैं, इसको एक डेंस पार्टिकल हम समझते हैं एज एक्सप्लेन बाय जॉर्ज फैलेट, ठीक है। 1955 टेक्स्ट बुक में 1953 दिया होता है, तो ये आपने करेक्ट भी कर लेना है। तो इस तरह आपने देखा राइबोसोम ये एक्सेप्शनल सुपर पार्टिकल है जिसके बगैर सेल सर्वाइव नहीं करेगा, ओके। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरी चीज सेल को सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो होता है ऑफ कोर्स राइबोसोम्स। तो दो सब यूनिट्स ये बाइंड हो जाते हैं बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस, फिर वो सेपरेट भी हो जाते हैं। सो कभी कभी ये बाउंड भी होते हैं, तो वो नाम हमने आपको बताया है पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। सो होप यू गेट आइडिया अबाउट राइबोसोम्स एंड देयर फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।